number fifth, which is basically to do with the renewable form of energy, or sometimes we refer as non-conventional forms of energy. And there we have discussed about wind energy systems, and after that we discussed about uh, solar photovoltaic as well as solar thermal power plants. So now what is left to discuss for today is concerning biomass. So let me move to that slide, then we'll discuss. Okay, so when we say biomass, it is actually uh, mass of what we call different products. As you can see this image, you can see that there are a lot of cellulose and biomass in terms of trees, harvests, and byproducts of many factory outputs. Uh, and then that is actually converted into biofuels. That biofuels could be a liquid fuel, then we call it bio oil. It could be gas, we call it biogas, and if it is solid, we call it biomass. And sometimes biomass is collectively uh, known as all forms of energy conversion through these bio materials. So if you see this diagram, you can see that a waste which is of a biomaterial can be retreated, transported, or stored, can be either directly burned, or we call it direct combustion, or it can be converted to a secondary energy carrier. तो एक तो ये है जैसे कि आप लकड़ी है, लकड़ी को डायरेक्ट आप आग के हवाले करते हैं, जला दें, and then we get thermal energy out of it. But then what we can do is we can convert it to a higher or secondary energy carrier in order to or in order for us to have a easy maneuverability, higher calorific value. For that, we can actually convert into thermochemical, physiochemical, biochemical. So these are the different types of secondary fuels that can be converted and that you can see on your screen. So we have like thermochemical, we have torrefaction, plasma treatment, we have gasification, pyrolysis, liquefaction, many names. Okay, so basically what we are doing is we are converting its thermal property, bioproperty, into some chemical property. So when we say torrefaction, what we are doing is we are converting it into a char, or we are converted into uh, a gasification, or the process through the process of gasification we are converted into a synthetic gas, which is a combination of many types of gas, or we are converting into a type of oil. We call it pyrolysis oil. That is actually an oil with a higher calorific value, and it is a combination of many types of uh, burnable, or you can think that way, that something that burns uh, oils, liquids. Then uh, we can convert into the methanol gas. Then we can convert into vegetable oil. So these are some of the forms that which we can convert.
Now, char is a form of solid fuel, pyrolysis oil, methanol, vegetable oil, biodiesel, even ethanol. These are the liquid fuels. And as for the gaseous fuels, we have synthetic gas, we call it syngas, and we have biogas. Now, the biogas is not coming through thermochemical process, rather it is coming from biochemical process. थर्मोकेमिकल प्रोसेस मतलब जिसमें हम आग के जरिए जो बायोमास है उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे गैसिफिकेशन में क्या करते हैं हम कि आग लगाते हैं हम, लेकिन उससे हम मटेरियल को जलाते नहीं हैं बल्कि उसके उसको किसी दूसरे फॉर्म में जैसे चार सिन गैस पायरोलाइसिस ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। पायरोलाइसिस भी गैसिफिकेशन की तरह से एक प्रोसेस होता है, बस उसमें ये होता है कि ऑक्सीजन नहीं देते हैं हम, जिससे कि वो लिक्विड फ्यूल पायरोलाइसिस ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसी तरह से फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। फर्मेंटेशन आप जानते हैं, एनारोबिक डाइजेशन यानी बगैर ऑक्सीजन के जो डाइजेशन होता है। डाइजेस्टर्स बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, उसमें जो है जो वेस्ट होता है उसको डाल दिया जाता है, उसमें वो सड़ता है और फिर उसमें से गैस प्रोड्यूस होता है, तो जिसे हम बायोगैस कहते हैं। सो जाहिर बात है वो अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है और बहुत ही कंट्रोल प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे अक्सर बात आती है कि नाली में पाइप डाल के गैस निकाल लेते हैं। तो इट इज़ नॉट रियली लाइक दैट, यू गॉट टू हैव अ क्वाइट डिटेल्ड प्रोसेस थ्रू विच यू कैन गेट अ बायोगैस। उसमें बहुत सारे एडिटिव्स भी डाले जाते हैं, प्लस उसमें प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना कंटेंट होना चाहिए और उस कंटेंट का प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, दैट ऑल is actually when it all sets right, then only we get biogas. So these are the fuels which we come from biofuels, we call it gaseous fuels. At the end all these things will burn, and at the end it will produce thermal energy. Now one may ask that when we burn this, we will again get carbon dioxide, and how it is different from burning a fossil fuel such as coal or gas for that matter. How it is different? Because in any way, if you burn the coal or if you burn the gas, we do get a byproduct of many gases, primarily carbon dioxide, which is a pollutant, and that affects the AQI level of the environment, which in turn affect the uh, biological survival of life. So, how it is different? Can somebody answer me? मेरी बात समझ गए आप लोग? सवाल समझे तभी जवाब दे पाएंगे। और अगर सवाल नहीं समझे तो फिर से पूछें, मैं सवाल समझाता हूँ, फिर हम जवाब लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। राजीव, राजीव, यस सर। सवाल समझा आपने? अमनदीप, अनस, ज़ईम, अफान, सर रागिब, अरबाज, सर यस सर। सवाल समझा आपने अनस? यस सर, यही तो पूछें कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से कैसे डिफर करता है ये। हाँ, फॉसिल फ्यूल्स और बायोमास दोनों ही जलने पे कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स छोड़ता है। तो फिर बायोमास को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी क्यों कहते हैं? और क्योंकि ये भी तो गैसेस प्रोड्यूस कर रहा है।
रिन्यूएबल अक्सर उसे कहा जाता है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, ग्रीन एनर्जी हो। अभी आपने सुना होगा कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गए थे एक फॉरेन विजिट में, कॉप 26, सुना आप लोगों ने? कॉप 26 सुना? कॉप 26। अरे किसी ने नहीं सुना? न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हो क्या? नो। अरे यार, क्रिकेट वगैरह के अलावा भी न्यूज़ में बहुत कुछ होता है। अब बताएं आप लोग, कॉप 26 कोई जानता है? कॉप 26 क्या है? व्हाट इज एंड व्हाई इट वाज इन द न्यूज़? लीजिए। अब जब आपको यही नहीं पता तो फिर आगे की बात कैसे करेंगे हम तो ये बताने वाले थे कि जब प्राइम मिनिस्टर गए थे इस कॉप 26 कॉन्फ्रेंस में, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि 2070 तक हम लोग नेट जीरो पे आ जाएंगे। ठीक। नेट जीरो पे आ जाने का क्या मतलब है? नेट जीरो आने का मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी पे आ जाएंगे। मुराद, जितना ज्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना ही ज्यादा उसको हम कंज्यूम कर लेंगे। इसको कहते हैं नेट जीरो, कि जितना आप पोल्यूशन फैला रहे हैं उतना ही पोल्यूशन आप एब्जॉर्ब भी कर लें। तो एब्जॉर्ब पोल्यूशन इंसान एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं, तो फिर उसको करेगा क्या? उसको मिनिमाइज करेगा और उसको उतना ही फैलाएगा जितना कि उसके पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर सकें, या उसके जो नेचुरल हैबिटेट है वो उसको दोबारा से उसके इफेक्ट को, जो भी पोल्यूशन है उसको जीरो पे लेके आए। ये है नेट जीरो। ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा 2070 तक हिंदुस्तान जो है वो नेट जीरो हो जाएगा। अब आप लोग इसको जरा सर्च कीजिए, देखिए इसके बारे में कुछ बात हुई है कहीं? सर्च कीजिए, मुझे जवाब दीजिए। आप इसको कॉप 26 लिखेंगे तो न्यूज आ जाएगा बहुत सारा। COP, कॉप 26। ठीक है, ये अगर इसको देखेंगे, सो दिस इज 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ऑल्सो नोन एज कॉप 26। is it is the 26th United Nations Climate Change Conference. ठीक है, it is being held at SEC Center in Glasgow, Scotland, United Kingdom between 31st October to 12 November। तो 12 नवंबर, अभी तो 12 नवंबर भी नहीं आया, यानी इट इज अंडर वे। ठीक है, तो आई थिंक यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज डेवलपमेंट्स। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक न्यूज़ पढ़ता हूँ which is published in Economic Times. India signs up to COP 26 action agenda on sustainable agriculture। यहाँ पे ये बात आई थी कि PM ने कहा कि हम जो है 2070 तक, 2070 तक जो पोल्यूशन है उसको बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे। नेट जीरो कहते हैं उसको, जितना हम पोल्यूट करेंगे उतना ज्यादा हम कंज्यूम भी कर लेंगे। दूसरी जो बड़ी बात थी इसमें वो था कि जो इफ वी आर टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग एंड कीप द गोल ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस अलाइव। ठीक है, मतलब जो 1.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल जो टेम्परेचर बढ़ गया है इस सेंचुरी में, उसको हम उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे, उसको वहीं पे रोक लेंगे। एक एक मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट अ मिनट।
Sorry for disturbance. तो where I was, तो ये जो है वो किसी ने कुछ पढ़ा है इस COP26 के बारे में? क्यों भाई? एनीवन? यस सर। क्या पढ़ा है अनस? कुछ पढ़ा आपने? है। यस सर, पढ़ा। अच्छा, क्या है जरा आपकी जुबान से भी समझ लें हम, आप सर लोगों की जुबान से भी। हाँ। सर जो COP26 का गोल है वो ये है कि सब मिड सेंचुरी तक जो हमारा टारगेट है वो यही है कि जो हमारा टेम्परेचर में बढ़ा इंक्रीज हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस, सर उसी के रीच में रहे ताकि उससे ज़्यादा उससे बियॉन्ड पार ना फर्दर करें। फर्दर ना बढ़ने दें। यस सर। हाँ। तो ये तो उस कॉन्फ्रेंस, जो 26 यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी पीस क्लाइमेट चेंज पे, उसकी बात थी। हिंदुस्तान से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने भी ये कहा कि हम ये भी पढ़िएगा 2070 तक इसको हम नेट ज़ीरो पे ले आएंगे। एक्चुअली यही पे जवाब है उस सवाल का जो मैंने आपसे किया था, कि बायोमास को हम लोग इसको रिन्यूएबल एनर्जी को इसीलिए डालते हैं क्योंकि ये नेट ज़ीरो है ऑलरेडी। नेट ज़ीरो इस तरह से है कि जितना ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है उतना ही ये कंज्यूम भी कर लेता है, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले जो पेड़ों से आते हैं, ये खुद इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम भी करते हैं, और जितना उनमें से निकलता है उतना ही वो उसको कंज्यूम भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो नेट रिजल्ट इन्वायरमेंट पे होता है वो नील होता है, ज़ीरो होता है। इसीलिए इसको हम लोग बायोमास को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में रखते हैं कि ये ग्रीन एनर्जी है। इवन दो आप जानते हैं कि जब गांव में लकड़ियां जलती हैं और चूल्हे पे जो खाना बनता है, तो हम देखते हैं कि वो उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है, वो पोल्यूटेंट भी होते हैं उसमें, और उसका हेल्थ पे इफेक्ट भी होता है, बिल्कुल अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो आप। लेकिन वो जो भी धुआं निकलता है वो ये पेड़ पौधे वापस इसको कंज्यूम कर लेते हैं इन अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब सर्किल सबका अलग अलग है, बट इट इज ऑल consumed as well. That is why biomass of any type is considered as net zero energy, and that is why it is known as green or renewable energy sector में इसको रखा जाता है। ये सवाल था मेरा। So I hope now this is clear, because this is a very obvious question that comes into mind. Slide change दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। Okay. So that is not important really. Biomass stove. कहाँ से आएगा ये? ये इसमें पूरे प्रोसेस हैं, बट आई डोंट थिंक वी नीड नॉट टू गो इनटू द गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस और क्या क्या स्टेजेस हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट रियली इन द परव्यू ऑफ द सिलेबस दैट वी हैव टू स्टडी, बिकॉज पांचवें यूनिट के एक सेक्शन ही है उसका, सब सेक्शन कह सकते हैं। सो वी नीड नॉट टू गो इनटू द full detail of the processes. We would rather go to power generation by biomass. So I'm coming to that. Biomass power generation. So biomass gasification power system has followed two divergent paths which are function of the scale of operation. At size much less than 1 megawatt, the preferred technology combined today is moving bed gasifier and ICE, internal combustion engine combination, while at scale much larger than 10 megawatt, the combination is of the fluidized bed gasifier and a gas turbine. Larger scale units than 25 megawatt would justify the use of a combined cycle. तो तीन प्रोसेस बताए गए हैं। 1 मेगावाट से नीचे तक आईसी इंजन की तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसमें हम फ्यूल सप्लाई, यानी जिस तरह से बायोफ्यूल, जैसा कि आप जानते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस यूज़ करके भी इंटरनल कंबशन इंजन चला के उससे हम पावर जनरेशन कर सकते हैं। दूसरा जो है 10 मेगावाट तक फ्लूइड
बेस्ड फ्लूइडाइज्ड बेस्ड गैसीफायर का यूज़ करते हैं। और 25 मेगावाट से ज़्यादा हम कंबाइंड साइकिल, जो रैंकिन बॉटम साइकिल कहते हैं, जैसे कि आप ये वाला देखेंगे एग्जांपल, ये जो हमने थर्मल पावर डिस्कस किया था, स्टीम पावर या थर्मल पावर प्लांट, जिसमें एक्चुअली हमें स्टीम बनाना होता है और उस स्टीम को टरबाइन पे हिट करना होता है एक बहुत ही एक्सट्रीम प्रेशर के साथ, जिससे कि टरबाइन घूमती है और फिर पावर जनरेट होता है। फिर उस वाटर को वापस से कूल करके और उससे इम्प्योरिटीज़ निकाल के, जैसा कि हमने थर्मल पावर प्लांट में पढ़ा था, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट में, उसको दोबारा से हम रिसाइकिल करके दोबारा से उसको स्टीम कन्वर्ट करते हैं और ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है। फ़र्क इसमें सिर्फ ये है कि जो आग का काम है इसमें, फायर का, वो जो है इंस्टेड ऑफ कोल वी यूज़ बायोमास। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसमें ऊपर से लकड़ी डाला जा रहा है और राइट और लेफ्ट से एयर पास करने की यानी रास्ता है, और उससे नीचे जो है जाहिर बात है कि वो जलेगा तो वो नीचे गिरेगा, उससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वो गैसेस फायर यानी किए जाते हैं, आग लगती है, जिसकी वजह से बॉयलर में आग जलता है और उस आग को यूज़ किया जाता है वाटर को बॉयल करने में, जो कि स्टीम के फॉर्म में टरबाइन को हिट करता है। और टरबाइन चूंकि जनरेटर से एक शाफ्ट के ज़रिए कनेक्ट होता है, तो फिर वो मूव करता है। और ज़ाहिर बात है, जनरेटर प्रिंसिपल हम जानते हैं, whenever we keep a uh, whenever we keep a conductor in a varying magnetic field, we get electricity. Through which we get electricity, then we use the transformer to manipulate the voltage level and of course current level as well, in order to transmit or distribute it to the customers or to the load center. So that is the whole process of getting power generated from biomass process. So biomass gasification के through, you can see solid biomass breaks down to form a flammable gas. Biomass classified first and then fuel burned. The advantages of this process is that it has a higher efficiency, flexible in capacity, इसके कैपेसिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, low investment. From financial perspective, we can understand that it is not very costly, but we have some disadvantages as well. It's a complex equipment, high maintenance, medium. Okay, so these are the two disadvantages. ये थोड़ा सा फॉर्मेट इसमें गड़बड़ हो गया है, गूगल पे चल रहा है ये, इसलिए गूगल डॉक्स पे ये नीचे आना चाहिए था। उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है इसके, मीडियम एंड स्मॉल पावर सिस्टम्स, कंबाइंड साइकिल विद कंबाइंड गैस टरबाइन एंड स्टीम टरबाइन कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये जो है हमारा एक कंसर्न था जो आपके सामने रखना था, कि किस तरह से बायोमास को यूज़ करके हम पावर को जनरेट करते हैं। अब ये रही बात जहाँ तक कि बायोमास को और कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उससे गैस स्टोव बना सकते हैं जिससे कि खाना बन सकता है, या उससे फर्दर प्रोड्यूसर गैस या सिंथेटिक गैस बना के उसे किसी और फॉर्म में इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ किया जा सकता है, आईसी इंजन में यूज़ किया जा सकता है, गाड़ी चलाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है, या फिर उसको गैस के फॉर्म में यूज़ करके उसको बहुत सारे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज इन एनी वे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ concentrated energy, whether it is a gas or it is liquid or even fuel, solid.
तो ये एक अलग चीज़ है, और ये किन अलग अलग प्रोसेसेस से होता है, जिसको हमने पहले थोड़ा सा एक आइडिया लिया कि वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ पायरोलाइसिस प्रोसेस और गैसिफिकेशन, या जो एनारोबिक डाइजेशन, ये सारे प्रोसेस हैं, बट दैट इज एक्चुअली आउट ऑफ आवर स्कोप ऑफ सिलेबस, सो वी आर नॉट focusing on the ways to convert it, rather we are focusing a methodology to utilize it. Okay, yes. So that was about biomass for power generation. The Ministry of New and Renewable Energy is promoting multifaceted biomass gasifiers based power plants for producing electricity using locally available biomass resources such as वुड चिप्स। चलिए ये डिस्कशन भी आ गया कि कितने तरह के बायोमास रिसोर्सेज होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि वुड चिप्स, लकड़ी को छोटे छोटे हिस्से में काट दें, हिस्से में, और उसे छोटा बहुत कहते हैं, चिप्स जिसे कहा जाता है, उस साइज में काट काट के यूज़ किया जा सकता है। राइस हस्क, जो अ, धान जो होता है, जो लोग गांव में, जिनका कुछ टच हो, वो जानते हैं कि जो राइस पेडी फील्ड होती है वो कैसी होती है, और राइस के ऊपर एक हस्क होता है, और उस हस्क को जाहिर बात है मशीन में उसको यूज़ किया जाता है, उसको, उसके हस्क को अलग किया जाता है। वो हस्क अपने आप में बहुत काम की चीज़ होती है। दैट इज़ एक्चुअली ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास, जिसको आप सड़ा के भी काम उस सड़ा के भी उससे लिक्विड बना सकते हैं, जिसको बाद में यूज़ किया जा सकता है। उसको डायरेक्ट जला के भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसको किसी सर प्रोसेस में ऑयल ऑयल भी यूज़ होता है सर किया उसमें। जाए। जी, उस क्वेश्चन है। सर उस हक से ऑयल भी निकलता है सर। कोयला भी निकलता है? ऑयल ऑयल सर, तेल। अच्छा, ऑयल, ऑयल भी निकलता है, ऑयल गुड गुड। जी, इसका ऑयल भी निकल जाएगा, राइस हस्क का। उसी तरह से पीनट्स होते हैं, पीनट्स के जो छिलके होते हैं वो भी यूज़ हो जाते हैं। जो ये जो गन्ने होते हैं, शुगर केन, जब उसमें से उसके जूस को निकाल लिया जाए तो जो बचता है वो भी यूज़ हो सकता है और होता है। So these are the different examples of cotton stalks, other agro residuals in rural areas. Residual यानी इसको आप यूज़ नहीं कर सकते अदर देन कि उसको वापस ज़मीन में ही दबा दें, और जाहिर सी बात है उसको ज़मीन में दबाना भी वो फ़ायदेमंद होता है। दैट एक्ट्स एज अ व्हाट वी कॉल मैन्योर, खाद जो होता है उसके काम में भी आता है। बट ऑफ कोर्स हम यहाँ पे खाद की तो बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट गोज इनटू द एग्रीकल्चरल साइंस। व्हाट वी आर एक्चुअली फोकसिंग इज दैट जो भी रेसिडुअल्स हैं उससे हम किस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कई बार कई सारे प्रोड्यूस इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो, उनको एक्चुअली हमें एट द एंड जलाना होता है। सो उसे हम कैश क्रॉप भी कहते हैं, कि उससे कोई प्रोडक्ट तो नहीं मिलेगी हमें, बट उससे उसका बायोमास बायोमास मिलेगा, यानी द वॉल्यूम ऑफ बायोमास which we can actually burn, and then we can get a lot of energy out of it. So MNRE is focusing on it. The main components of the biomass gasifier programs are, so ये MNRE आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जो मिनिस्ट्री है, दैट हैज़ स्टार्टेड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन बायोमास एरियाज इन इंडिया, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कोर नेशन, जिसमें अच्छा खासा इकोनॉमी का हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर हुआ करता है। प्लस गिवन द फैक्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, जो इसमें खेती होती है और जो इसमें से रेसिडुअल रूरल प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी बहुत सारे होते हैं। जानवरों से भी जो आते हैं, जिन्हें गोबर कहा जाता है या उपले जिससे बनाए जाते हैं, दैट is also a sort of a type of biomass. So that was one. One is captive power generation, application in rice mills and other industries. कैप्टिव पावर जनरेशन यानी एक ऐसा पावर जनरेशन जो किसी खास
इंडस्ट्री को यूज़ किया जाए, राइस मिल जैसे है इस तरह की चीज़ों पे भी, यानी राइस के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसी से आप पावर जनरेशन बना के और फिर वापस उसी मिल को चलाते हैं। सो लाइक एक आप समझ सकते हैं कि ये एक रीजनरेटिव टाइप चीज़ हो गई। टेल एंड ग्रिड कनेक्टेड पावर प्रोजेक्ट्स अप टू 2 मेगावाट, ठीक है, ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स जो 2 मेगावाट तक की हो जाए। The focus of the biomass gasifier program is to meet captive electrical and thermal needs of the rice mills and other industries, which in turn helps in replacing service of conventional fuel such as coal, diesel, furnace oil। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये जो राइस मिल में जो इंजन्स लगे होते हैं वो डीजल पे चलते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई फ्यूल हो, फर्नेस ऑयल या और कुछ। सो दैट इज ऑफ कोर्स coming from fossil fuel, and which is not green in the sense, in the sense of the climate. So in addition to provide unmet demand of electricity for villages for lighting, water pumping and micro enterprises, emphasis is also given for setting up of the small biomass gasifier based power plants up to 2 मेगावाट। ठीक है, तो गवर्नमेंट कई बार इसको इनकरेज करती है कि लोग जो है पावर जनरेट करें, गैसिफिकेशन। In fact, it's just a process for biomass. बेसिकली बायोमास पावर प्लांट्स लगाएं, और जिससे कि बिजली का जो प्रोजेक्ट है वो तो काम हो ही, कि विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो, उसके साथ साथ वाटर पंपिंग और जो एंटरप्राइजेस हैं, छोटे काम होते हैं जो कुछ लोग मिलके करते हैं, उसमें भी इसको यूज़ किया जा सके। The program envisage implementation of such projects with involvement of independent power producers, IPPs, energy service companies, ESCOs, industries, cooperatives, panchayat, SHGs, NGOs, manufacturers, entrepreneurs, industries, promoters, and developers. About 150 megawatt equivalent biomass gasifier system has been set up for grid एंड ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट्स। तो ये एक डेटा है, 150 मेगावाट अच्छा खासा बड़ा अमाउंट होता है, गिवन द फैक्ट दैट बायोमास जो है वो बहुत स्मॉल लेवल पे मेगावाट, 1 मेगावाट या 1 मेगावाट से कम भी के लेवल पे पावर जनरेट करते हैं। सो दैट्स इट अबाउट बायोमास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड आई थिंक that's it for this unit, or I'll see if there is more to it. Let me check the syllabus. नहीं, अभी जियोथर्मल भी है इसमें, और MHD भी है, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक, बायोगैस, हाइड्रोजन भी है। Anyway, so we will cover geothermal and wave energy next time. We'll try to finish both in one class, maybe tomorrow. And then probably in this week we can end this unit 5th. Then then only unit 4 will be left for consideration. कोई सवाल? Any question? रोहित है?